Hello everyone, welcome to our channel Assemble to Learn. So we were discussing previous year questions of Army Public School, that is physics questions of TZT physics paper, and today we are going to discuss question number 31 to question number 45. So let's start from question number 31. A parallel plate condenser has a uniform electric field E in the space between the plates. If the distance between the plates is d and area of each plate is a meter square, the energy in joules stored in the condenser is. तो हमें find out करना है what is the energy stored in the condenser. That is, there is a formula for energy stored in the condenser or energy stored in the capacitor is E is equal to half CV square. C is our capacitance and capacitance का formula होता है A epsilon naught by D. D is distance and V is potential. Potential is electric field into distance, square of E dot D. Then we will get E is equal to half A epsilon naught E square D, that is half epsilon naught E square AD is our energy stored in the condenser. Half epsilon naught E square AD. Option number 1 is correct. Next is question number 32. When the temperature of a gas is raised from 27 degrees Celsius to 90 degrees Celsius, the percentage increase in the RMS velocity of the molecules will be. RMS velocity में percentage increase कितना हो रहा है ये find out करना है. VRMS का formula होता है VRMS is equal to under root 3 RT by M. R is our universal gas constant and M is molecular weight. T is temperature. Suppose initial temperature T is 27 degree Celsius, that is हम उसको convert करेंगे Kelvin में तो 300 Kelvin. 90 degree Celsius second temperature, increased temperature 363 Kelvin. अगर हम उसका रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो V dash RMS by V RMS इज इक्वल टू, यहाँ पर R तो कांस्टेंट 3 कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा, सेम गैस दिया गया है, टेम्परेचर ऑफ ए गैस एक ही गैस है तो वी आर एम एस वेरी करेगा बाय टेम्परेचर ओनली. तो वी डेस आर एम एस डिवाइडेड बाई वी आर एम एस इज अंडर रूट ऑफ टी डेस बाई टी. टी डेस वैल्यू इज 363 डिवाइडेड बाई 300 तो अंडर रूट 1.21 विच गिव्स 1.1. अगर हम वहाँ पे -1 करते हैं तो वी डेस आर एम एस माइनस वी आर एम एस डिवाइडेड बाई वी आर एम एस हमें मिल जाएगा. फिर हमें परसेंटेज इंक्रीज फाइंड आउट करना है तो इंटू 100 दैट इज 10% इज आवर करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33 विच इज इनकरेक्ट. 4 ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है. तो आइसोबैरिक प्रोसेस मीन्स प्रेशर कांस्टेंट, डेल्टा P इक्वल टू 0, इट इज करेक्ट. इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा W इज इक्वल टू 0. आइसोकोरिक मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट्स मीन डेल्टा V इज इक्वल टू 0 और हमें पता है W इज इक्वल टू PdV. तो dV अगर 0 तो W 0, W 0 तो डेल्टा W इज इक्वल टू 0. तो ये भी सही है. इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा Q इक्वल टू 0 और फोर्थ ऑप्शन है इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा T इक्वल टू 0. आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा T इक्वल टू 0 सही होगा. तो ये जो थर्ड ऑप्शन है इट इज इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा Q इक्वल टू 0, ये हमारा इनकरेक्ट होगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34. The part of a transistor which is heavily doped to produce a large number of majority carrier is emitter, base, collector. Which one is heavily doped? Emitter is heavily doped because base is very lightly doped and our collector is moderately doped. Emitter is heavily doped as emitter inject large number of charge carriers into the base. Next is question number 35. To demonstrate the phenomenon of interference, we require two sources which emit radiation. इसके लिए तो हमें कोरेंट सोर्सेस चाहिए. कोरेंट सोर्सेस मीन्स फ्रीक्वेंसी सेम होगा और डेफिनाइट फेज रिलेशनशिप होगा. तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 36.
A force of 2I cap 3J cap 4K cap Newton acts on a body for 4 seconds, produces a displacement of 3I cap 4 plus 4J cap plus 5K cap meter. Power used is, power हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज वर्क डन बाय टाइम. F का वैल्यू है, S का वैल्यू है, टाइम 4 सेकेंड है, P इज इक्वल टू W बाई टी. W इज आवर F डॉट S. फिर F और S का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो हमें 6 प्लस 12 प्लस 20 जो कि हमें 38 मिल रहा है. टाइम तो 4 सेकेंड है, तो फाइनली पावर का वैल्यू 9.5 वाट. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37. द प्राइमरी वाइंडिंग of a transformer has 100 turns and its secondary winding has 200 turns. Primary is connected to AC supply of 120 volt. Current flowing in it, मतलब primary में current 10 ampere. Voltage and the current in the secondary are. There is a formula NP by NS, number of turns in primary divided by number of turns in secondary, is equal to VP by VS is equal to IS by IP. NP, NS, VP, IP is given. By putting this formula, we can find the value of VS, that is 240 volt, and current in secondary is 5 ampere. That is option 4 is correct, 240 volt and 5 ampere. Question number 38. Light of two different frequencies whose photons have energies 1 electron volt and 2.5 electron volt respectively illuminate a metallic surface whose work function is 0.5 electron volt. Ratio of maximum speeds of emitted electrons will be, हमें V max फाइंड आउट करना है. तो क्या फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज एंड प्रोटॉन का एनर्जी ऑफ प्रोटॉन माइनस वर्क फंक्शन 5. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ एम बी मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस 5. फिर उसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो फोटोन का एनर्जी ऑफ फोटोन 1 एंड एनर्जी ऑफ फोटोन 2. तो फोटोन का दिया गया था क्वेश्चन में 1 EV एंड 2.5 EV. तो यहाँ पे 1 EV 1 माइनस 0.5 वर्क फंक्शन और 2.5 माइनस 0.5 वर्क फंक्शन, तो इसका रेशियो मिल रहा है 1/4. फिर ये स्क्वायर का वी मैक्स स्क्वायर बाई वी मैक्स 2 स्क्वायर का वैल्यू है, तो हमें वी मैक्स 1 बाई वी मैक्स 2 फाइंड आउट करना है, जो हमें मिल रहा है अंडर रूट ऑफ 1/4, दैट इज 1/2. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर. Next is question number 39. Motion of a moving electron is not affected by. Motion of a moving electron is not affected. Electric field applied perpendicular to direction. Magnetic field applied perpendicular to direction of motion. Magnetic field applied in the direction of motion. यहाँ पे ये सही होगा. An electric field applied in the direction of motion. जैसे कि फोर्स का वैल्यू होता है F इज इक्वल टू QVB इन ए मैग्नेटिक फील्ड. In a magnetic field, F is equal to QVB. फिर V क्रॉस B इज VB साइन थीटा. और जब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट अफेक्टेड. मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. मैग्नेटिक फील्ड मीन्स B अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब स्पीड वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा मतलब थीटा 0 डिग्री. Theta 0 means sin theta is 0, then force is 0. So, motion of a moving electron is not affected. Motion of a moving electron is not affected by when magnetic field applied in the direction of motion. Next is question number 40. One electron and one proton is accelerated by equal potential. The ratio of de Broglie wavelength, lambda lambda का ratio find out करना है. लैम्डा का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू H बाई अंडर रूट 2m QV. यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है इक्वल पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो उनका रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे. तो H तो कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, तो MP QP लैम्डा E बाई लैम्डा P इज इक्वल टू MP QP VP बाई ME QE V अंडर रूट. और QP इज
Q charge of proton and charge of electrons are equal, Vp और V equal according to question given in the question. तो हमें रेशियो मिल गया लैम्डा E by लैम्डा P. Ratio of their de Broglie wavelength is ratio of masses of proton to masses of electron. That is MP under root MP by ME. Option number 2 is our correct answer. Next, question number 41. In a flywheel of mass 20 kg, diameter 1 meter is rotating 300 revolution per minute, its kinetic energy will be ओमेगा दिया गया है 300 रिवोल्यूशन पर मिनट 300 आरपीएम, दैट इज़ उसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन पर सेकेंड में. फिर ये फ्लाई व्हील है तो हम फाइंड आउट करेंगे इसका काइनेटिक एनर्जी, दैट इज़ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. आई इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज़ एंगुलर स्पीड. तो एक फ्लाई व्हील रिंग की तरह होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर. एम गिवन है 20, आर इज़ 1 मीटर इज डायमीटर, तो रेडियस 0.5 मीटर, 0.5 का स्क्वायर तो हमें मिल रहा है 5. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 5. फिर ओमेगा तो आरपीएम में दिया गया है, उसको 2π/60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रेडियन पर सेकेंड में वैल्यू मिल जाएगा जो कि हमारा 10π होगा. फिर काइनेटिक एनर्जी के लिए उसका आई और ओमेगा का वैल्यू पुट करेंगे तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, फाइनली हमें 2465 जूल मिल रहा है हमारा काइनेटिक एनर्जी, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 4. The penetration of light. Next question 42. The penetration of light into the region of geometrical shadow is called. This is refraction, diffraction, interference, polarization. This is diffraction because diffraction is caused due to turning of light around corners. So geometrical shadow region में आएगा तो diffraction is. Next is our question number 43. Velocity of sound in air increases with temperature, decrease with temperature, increase with pressure, independent of pressure, is independent of temperature. तो only 1, 3 are true. कौन से दो ऑप्शन सही होगा? तो there is a relation that is velocity of sound is directly proportional to under root of temperature. तो velocity of sound increases with increase in temperature. तो first option is right, that is increases with temperature means increases with increase in temperature. But decreases with temperature, decreases with decrease in temperature, ये भी सही हो सकता है. फिर प्रेशर के साथ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, तो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर वाला ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर 4 है. 4 कहाँ पर? यहाँ पर 4 वाला ऑप्शन एक ही है, तो ओनली 1 and 4 आर ट्रू. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44. A projectile thrown from a height of 10 meter with a velocity of √2 meter per second, the projectile will fall from the foot of the projection at a distance. G का वैल्यू दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका डायग्राम कुछ इस तरह का होगा. सपोज यहाँ से कुछ ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यहाँ से फुट ऑफ द प्रोजेक्शन है, यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल किया गया है √2 मीटर पर सेकेंड से, और ये कुछ x मीटर डिस्टेंस पे आके गिरा है, और ये जो हाइट दिया गया है ये 10 मीटर दिया गया है. तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारा इनिशियल x डायरेक्शन पे इनिशियल वेलोसिटी √2 मीटर पर सेकेंड, y डायरेक्शन में 0, तो ux एंड uy हमें मिल गया. फिर अगर हम y एक्सिस में वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर, मतलब 10 मीटर डिस्टेंस के ऊपर है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे इन y डायरेक्शन, दैट इज sy इज इक्वल टू uy_t प्लस हाफ ay_t स्क्वायर. तो sy का वैल्यू 10, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज 0, तो 0, और यहाँ कुछ g एक्सेलरेशन g होगा तो हाफ gt स्क्वायर. यहाँ से हमें t का वैल्यू मिल रहा है √2 सेकेंड. फिर उसको हम अप्लाई करेंगे फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन x डायरेक्शन, दैट इज sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर. x डायरेक्शन में वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन 0, ux इनिशियल √2 मीटर पर सेकेंड, t टाइम √2 सेकेंड, √2 इंटू √2 हमें मिल गया 2 मीटर.
x का वैल्यू हमें मिल रहा है 2 मीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ ड्यूटेरॉन एंड प्रोटॉन एक्सेलरेटेड बाय इक्वल पोटेंशियल। यहाँ पे भी हमें रेशियो फाइंड आउट करना है वेवलेंथ का, और पोटेंशियल सेम है, प्रोटॉन और ड्यूटेरॉन का पोटेंशियल सेम है। तो प्रोटॉन के लिए 1h1, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज m, चार्ज इज e। ड्यूटेरियन 1h2, मास 2m, चार्ज e। तो लैम्डा का फॉर्मूला है h/√2m/v, v इक्वल रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन इन क्वेश्चन। तो लैम्डा डी ड्यूटेरॉन, पहले क्या दिया गया है, ड्यूटेरॉन एंड प्रोटॉन, तो लैम्डा डी बाय लैम्डा पी इज इक्वल टू √mp/qp/vp डिवाइडेड बाय md, ड्यूटेरॉन का मास, qd ड्यूटेरॉन चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ ड्यूटेरॉन। vp is vd is equal, vp and vd are equal, so lambda d by lambda p is mp by md, charge is also equal, m divided by 2m, that is 1/√2। हमें इसका रेशियो मिल रहा है 1 divided by √2, that is option number 3rd is correct. Option number 3 is our right answer. So friends, here we completed question number 45। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।